Good morning everyone. I welcome all of you on the YouTube channel of Government College Hadol, Udaipur. In previous lecture we talked about Mulkraj Anand, and in this particular lecture we will talk about Coolie. Okay, so the novel Coolie was published in 1936. It was second novel of Mulkraj Anand. The previous novel that was published before this novel was Untouchable, that was published in 1935. Okay, so today in this lecture we will read about read the brief summary of the novel. Okay, so the detailed summary or line by line reading of this novel is not possible in online classes, so I am just reading the not reading, I am just summarizing this novel. Okay, so the first thing about this novel is that the protagonist of this novel is Munno. Okay, the name of our hero is Munno. He is a 14-year-old orphan boy, and he is raised by Dayaram. He is Munno's uncle who brought him up, and Guzri is his aunt. उसकी चाची का नाम क्या था? गुजरी था. तो मुन्नो is a very happy boy in his village. He was an orphan boy raised by his aunt and uncle, and he was enjoying, when he was in his village, he was enjoying his school going and playing amid the gently rolling कांगड़ा हिल्स अराउंड हिज नेटिव विलेज बिलासपुर. बिलासपुर नाम का एक गांव था, वहाँ का रहने वाला था. उसके आस पड़ोस में कौन सी पहाड़ियाँ थी? कांगड़ा की पहाड़ियाँ थी. सो व्हेन मुन्नो वाज 14 year old, his uncle told him that he cannot afford his उसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता. he said that he cannot afford to provide him. So the time has come for Munno to work and live his life at his home. But the boy has a little education, and to say उसके पास कोई education नहीं थी, and there was no employable skills to him. But in spite of all these things, his uncle takes the boy to the nearby town, that is the Shamnagar. Okay, so the time he reached to the to the city or to the town, he felt like that he has come to a new place, and he has come to a new world where every sight gives him a different kind of thoughts. So in the town he got a job as a house servant in a middle class bank clerk. His name is Nathuram, who was a clerk in Imperial Bank, and the clerk treated him very kindly, and very recently he was treated by the clerk and his brother, whose name was प्रेमचंद. बट उसके साथ एक बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था उसकी वाइफ के द्वारा, जिसका नाम था बीबी उत्तम कौर. बीबी उत्तम कौर थी, वो उसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार करती थी और उसको ज़रूरत से ज़्यादा वर्क दिया करती थी, उसको ह्यूमिलिएट किया करती, एंड एवरी टाइम she used to insult and abuse him. But good thing was that there was a daughter in that family whose name was शीला. उसको शीला से दोस्ती हो गई, मतलब शीला के साथ वो खेलता रहता था, एंड वो शीला को खुश करने के लिए वो क्या करता था? he used to dance like monkeys. He tried well in appearance and mannerism imitating the acts. वो मंकियों की तरह एक्ट करता था, उसके तरीके, उनके व्यवहार की चीज़ें इमिटेट करता था, एंड उसको खुश करने के प्रयास में वो हर रोज़ ऐसा खेल खेला करते थे वो लोग. एंड वन डे वो उस खेल में कुछ ज़्यादा ही डूब गया, एंड मुन्नो गेट कैरिड अवे विथ हिज मंकी रूटीन एंड एक्सीडेंटली बाइट द गर्ल्स चीक. लड़की का जो गाल है उस पर उसने बाइट कर दिया एक्सीडेंटली, कोई इंटेंसली नहीं है, एक्सीडेंटली उसने कर दिया, एंड दिस एक्सीडेंट रिजल्टेड इनटू ए मर्सिलेस बीटिंग एंड मेंटल टॉर्चरिंग डाउन फ्रॉम डाउन टू डस्क. सुबह से लेकर शाम तक उसको पीटा गया,
which terrified him and made him to run away to another city. Okay, तो वो बहुत परेशान हो गया और बहुत ज़्यादा डर गया था। तो आखिर में वो परेशान होकर क्या कर गया, उस घर को छोड़ दिया, उस शहर को छोड़ के, और वो किसी दूसरे शहर में भाग गया था। जब वो भाग रहा था, so on the train he met a couple. The man एक कपल से मिला जिसमें एक प्रभु दयाल नाम का आदमी था और उसकी वाइफ थी. He was running to a city that was near about 2 hours distant from the previous city, and this city is दौलतपुर. तो वहाँ एक दयाल नाम का, प्रभु दयाल नाम का आदमी था जो कि पिकल की फैक्ट्री चलाया करता था, या फिर अचार की एक फैक्ट्री चलाया करता था. सो प्रभु दयाल एंड हिज वाइफ ऑफर्ड हिम to work in factory. The factory was very uneasy, and the odor of organic waste was very unpleasant, and there was a little scope for ventilation. उसमें ventilation बहुत कम था, and काम का वक्त भी बहुत ज़्यादा था और पैसे भी बहुत कम थे. But good thing was that in दौलतपुर everyone liked him. उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, and the couple was very kind to him. So he decided to stay there. Okay, and one day one thing happened that Prabhu Dayal's neighbor Todermal नाम का कोई आदमी था जो कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, कंप्लेंट अबाउट द फैक्ट्रीज टू मच इमिटिंग ऑफ स्मोक, कि स्मोक बहुत ज़्यादा स्मोक ये फेंकती है बाहर और बहुत ज़्यादा क्या करता है, बदबू आती है. बट जो प्रभु दयाल था उसने मामला सेटल कर दिया. बट एक दूसरा मामला सामने आया जब प्रभुलाल का जो और बिजनेस पार्टनर था, उसका जो पार्टनर था, फैक्ट्री में पार्टनर था गणपत, हु स्कीम्ड टू डिफ्रॉड द बिजनेस, एंड द स्कीम कोलैप्स्ड एंड प्रभुदयाल बिकम बैंकक्रप्ट. वो दिवालिया हो गया, एंड ही वाज रूइंड, एंड there was no reserved money with प्रभुदयाल, so he cannot run the factory anymore, and he closed the factory and went back to his village. और वो छोड़ के गांव चला गया. And this accident made Munno left alone on the street once again. Once again on the street, Munno struggling to find a place to sleep among the homeless, the poor and the diseased. Okay, उसको मजबूरन किसके साथ सोना पड़ा, होमलेस, गरीब और जो बीमार आदमी थे उन लोगों के साथ में सोना पड़ा. Then one day he was searching for the job, and he encountered a poster advertising a circus that was passing through the street to the Bombay. मतलब एक बॉम्बे जाने वाला एक सर्कस था, उसका एक बोर्ड उन्होंने देखा, and it made Munno believe that it has his time to come, and it has the Bombay is the city which can give him salvation. Okay, so falling in with the traveling circus, Munno working for a stint with the elephant keeper arrives in Bombay full of expectations. पूरी उम्मीदों के साथ में जब वो हाथी वाले के साथ में पहुंचा मुंबई, तो उसकी बहुत सारी उम्मीदें थी. लेकिन जैसे ही वो उस शहर को पहुंचा, जैसे ही वह मुंबई को पहुंचा, उसको थोड़ी निराशा हुई, because this was full of noise. The city was full of noise, full of confusion, and there was many people who were wandering for work, and there was hardly any work to be found. So it seems that the city was full of unpleasant and unskilled coolies. जो शहर था वो पूरा भरा हुआ था. And finally later he got a job in a cotton mill that was run by a British immigrant. ब्रिटिश इमिग्रेंट का मतलब होता ब्रिटेन से कोई आया हुआ था, उसके द्वारा वो फैक्ट्री चली जा रही थी, जिसका नाम था सर जॉर्ज वाइट कॉटन मिल. द मिल वाज मैनेज्ड बाय ए ब्रूटल फोरमैन हु relishes मिसट्रीटिंग, हैरासिंग एंड फिजिकल अब्यूजिंग द कूलीज. वहाँ के जो काम करने वाले थे उसको शारीरिक और मानसिक रूप से वो प्रताड़ित किया करता था. वहाँ का जो मैनेजर था वो. द कंडीशन इन द फैक्ट्री वर वर्स देन द हेल, एंड द हॉर्स ऑफ वर लॉन्ग एंड मीगर वेग. कम पैसा, ज़्यादा टाइम, स्थिति बहुत बेकार थी. फैक्ट्री का जो फ्लोर था वो बहुत बुरी तरह से गर्म हुआ करता था, एंड
वहाँ की जो हवा थी वो फुल ऑफ कॉटन फ्लफ्स थी, ठीक है। कॉटन के जो फ्लफ होते थे उस वो चारों तरफ उड़ते रहते थे, वहाँ का माहौल बहुत बेकार हुआ करता था। ओके, सो देर मुन्नो एंड वहाँ उसको काम करना, स्थिति बेकार थी लेकिन फिर भी उसको काम करना पड़ता था। एंड उसी दौरान उसकी दोस्ती एक हरी नाम का लड़का था उससे हुई, एंड ही ऑल्सो बिकम अटैच्ड विथ रतन एंड बी फाउंड हिज फ्रैंक एंड बी फाउंड ऑफ हिज फ्रैंकनेस एंड बोल्डनेस। एक रतन नाम का आदमी था जो कि पहले रेसलिंग का काम भी किया करता, मतलब पहले एक कुश्ती वाला भी वो काम करता था, पहले वो कुश्ती भी लड़ा करता था। Who agitated openly and enthusiastically for the rights of the coolies and preaches the need for the exploitation work to strike for better condition। अच्छी conditions लाने के लिए उसको स्ट्राइक करने की आवश्यकताओं पे वो बल दिया करता था। लेकिन इसकी वजह से वन डे that person Ratan was dismissed with little provocation and the workers protested, and in the ensuing riots that erupted in the street around the factory, Munno, terrified at the violence and the chaos, and with this he was separated from the factory and from Ratan also, and finally the factory was shut down, and Munno was again on the street, alone, jobless, homeless, like this. And one day an accident happened that he was wandering for work, or he was wandering workplace, and he was hit by a car. The car belonged to Mrs. Manwaring। मैनवरिंग नाम की एक औरत थी जिसकी वो कार थी। ए वेल्दी वुमन वो ऑल दाउ हाफ इंडियन और हाफ ब्रिटिश, वो क्या थी, हाफ ब्रिटिश और हाफ इंडियन थी। उसके मम्मी पापा में से कोई, जैसे हम कल बात किया था ना एंग्लो इंडियन, ठीक है, तो उनमें से वो थी, जैसे कि उनके मम्मी पापा में से कोई एक ब्रिटेन का था और एक इंडिया का था, ठीक है, और वो अपने आप को एक ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट ब्रिटिश लेडी समझा करती थी। मिसेस जो मैनवरिंग थी, दैट वाज डिस्टर्ब्ड ओवर दिस एक्सीडेंट एंड शी फेल्ट पिटी अबाउट मुन्नो एंड शी टेक्स मुन्नो एज ए सर्वेंट एंड टेक हिम टू द शिमला। वो शिमला की रहने वाली थी और मुन्नो को कहाँ ले गई, शिमला ले गई। एंड दे ड्रॉव फॉर 2 days, 2 दिन तक लगातार उन्होंने जर्नी करी, बम्बई से लेके और हिमालय की फ्रूट हिल्स तक जाके, और 2 दिन की जर्नी के बाद में वो कहाँ पहुँचे, शिमला पहुँचे, ठीक है। मिसेस मैनवरिंग ट्रीट्स मुन्नो वेरी वेल एंड केप्ट हिम एज हिज पर्सनल असिस्टेंट, एंड उसके साथ साथ वो उसकी जो रिक्शा था उसको भी गलियों में खींचा करता था जब भी उसको बाहर जाना होता था। द वर्क वॉज वेरी डिफ़िकल्ट बट मुन्नो वॉज वेरी ग्रेटफुल विद द सराउंडिंग। उन लोगों का व्यवहार, मतलब उस लेडी का व्यवहार और आस पड़ोस की जो सराउंडिंग थी उसको देख के उसको अच्छा लगता था और वो जगह उसको पसंद आई। उसने डिसाइड किया कि वो अब यही रहेगा। उसको डिसाइड करने का वो था क्योंकि there was the sight of familiar hills nearby mountains which remind him of his village। वो कुछ पहाड़ियाँ थी जो कि उसको अपने गांव का याद दिलाया करती थी। But unfortunately something was something wrong was about to happen with Munno, and suddenly he begins to feel the signs of tuberculosis like fatigue, high fever, खांसी के साथ में खून आना, एंड इन शॉर्ट ऑर्डर ऑफ टाइम डिस्पाइट मैनवरिंग्स कंसिडरेबल केयर मुन्नो डाइज। बहुत परवाह करी गई, उसको दवाइयाँ भी दिलाई गई, या फिर मिसेज मैनवरिंग ने उसकी बहुत सारी खातरदारी करी, उसकी देखभाल करी, बट अनफॉर्चुनेटली द मुन्नो हैज़ टू डाइड। और जब वो मरा तब उसकी उम्र कितने साल की थी, 15 साल की थी। तो इस 1 साल के दौरान, मतलब 14 साल में जब वो अपने घर से निकला था, ठीक है, 14 साल की उम्र में जब वो अपने घर से निकला था, कौन सा गांव था उसका, बिलासपुर। उसके आस पड़ोस में क्या थी, कांगड़ा हिल्स थी। वहाँ से जाके वो कहाँ चला गया, अलग अलग शहरों में उसने काम किया। उसने काम किया किसमें, दौलतपुर में काम किया, फिर वो मुंबई चला गया। उससे पहले एक दूसरे शहर में भी उसने काम किया था। एंड
फाइनली वो शिमला चला गया और वहाँ उसको अपने गांव की सराउंडिंग पसंद आई और इसी वजह से वो वहाँ रहना पसंद करता था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था एंड फाइनली ही डाइड। तो इस 1 साल के दौरान में उसने कितने चीज़ें देखी और क्या क्या चीज़ें महसूस करी और क्या क्या चीज़ें सही, और किस तरह से हमारा जो नोवेल है ये डिपिक्ट करता है कि किस तरह से मज़दूरों का शोषण किया जाता है, किस तरह से जो लोअर कास्ट के लोग हैं या फिर जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड है या फिर जो मज़दूर वर्ग है उसके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है। दिस इज़ ए बुक कवर ऑफ मुल्कराज आनंद से नोवेल कूली एंड दिस इज़ वेरी ब्रीफ समरी। ये बहुत छोटी समरी है, इसको बहुत छोटी तरीके से मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, लेकिन आप लोगों को इसे टेक्स्ट बाय लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी है। यदि आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यदि आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे तो जो छोटे आंसर हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, बड़े आंसर तो चलो आप ठीक है मैं आने वाले लेक्चर में तैयार करवा दूंगा, लेकिन जो छोटे आंसर्स हैं वो आप तभी समझ पाओगे, जब तभी कर पाओगे जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो आने वाले लेक्चर में कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं कूली के उसके बारे में हम बात करेंगे, करेक्टर्स के बारे में बात करेंगे या फिर और जो पहलू हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।